નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમંચ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. ને રાજીનામા કરાવશે રાજી, કારણ કે રાજીનામાનો દોર એક પછી એક જે જોવા મળી રહ્યો છે ને લાગી રહ્યું છે કે 2024ની જે લોકસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે એની તૈયારીઓ અત્યારથી ક્યાંક જોવા મળી રહી છે. 2022 વિધાનસભાની તૈયારીઓ તો છે જ, પણ 2024ની આ લોકસભાની ચૂંટણીની તૈયારીઓ જોવા મળી રહી છે. કર્ણાટકના યેદિયુરપ્પાથી માંડીને જે એક પછી એક રાજીનામાનો દોર જોવા મળ્યો. ગુજરાતમાં પણ અચાનક ક્યાંક જે મુખ્યમંત્રી પદે બિરાજમાન હતા વિજયભાઈ રૂપાણી, એમનું પણ રાજીનામું લેવાઈ ગયું અને તમામ મંત્રીમંડળ એકદમ કહેવાય કે સાફ કરીને નવું મંત્રીમંડળ, નો રિપીટ થિયરી. ત્યાર પછી જે કેપ્ટન છે અમરિન્દરસિંહ, પંજાબમાં કોંગ્રેસે એમનું રાજીનામું લઈ લીધું. એ પછી એક રાજીનામાનો દોર જોવા મળ્યો. તો સિદ્ધુએ બાકી હતું તો સિદ્ધુજી જેઓ પંજાબ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ હતા તેમણે પણ પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું. એમણે તો આપ્યું, સાથે સાથે કેબિનેટ મંત્રી રજિયા સુલતાનને અન્ય એક મંત્રીએ પણ રાજીનામું આપી દીધું છે. અને કેપ્ટને એ વખતે ટોણો માર્યો કે મેં પહેલાં જ કહ્યું હતું કે સિદ્ધુ અસ્થિર માણસ છે, સ્થિર નથી. આ વાત પણ એમણે કરી. બીજી તરફ કેપ્ટનની જે અમિત શાહ સાથે અને જે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નડ્ડાજી સાથે મુલાકાત છે એને લઈને પણ ક્યાંક રાજકીય ગરમાવો જોવા મળ્યો છે. હવે ભાજપમાં જોડાશે કે કેમ એ તો આવનારો સમય બતાવશે, પરંતુ સમીકરણો કયા રચાઈ શકે છે પંજાબમાં ખાસ કરીને. અને બીજું, મેં કહ્યું તેમ 2022 વિધાનસભાની ચૂંટણી અને લોકસભાની ચૂંટણીની આ તૈયારીઓના ભાગરૂપે તો રાજીનામાનો આ દોર નથી ને. કોણ થશે રાજી, કોણ થશે દુઃખી, આવનારો સમય બતાવશે. પરંતુ કોંગ્રેસમાંથી જે પંજાબના અધ્યક્ષ પદેથી સિદ્ધુએ રાજીનામું આપ્યું, તો બીજી તરફ જિગ્નેશ મેવાણી અને કનૈયા કુમાર કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. એમણે કહ્યું કે દેશની સૌથી મોટી પાર્ટીને બચાવવાની છે. આ વાત કનૈયા કુમારે કરીને કોંગ્રેસ બચશે તો દેશ બચશે, સંવિધાન બચાવવાનું છે, આવી મોટી મોટી વાતો થઈ રહી છે. ત્યારે આ બાબતને, રાજીનામાને લઈને ચર્ચા કરવી છે. ચર્ચા કરવા માટે મારી સાથે જોડાયા છે જાણીતા રાજકીય વિશ્લેષક એવા મનસ્વી થાપર જોડાયા છે. મનસ્વીજી, સ્વાગત છે આપનું. ધન્યવાદ. વરિષ્ઠ પત્રકાર તરીકે ડોક્ટર હરિ દેસાઈ જોડાયા છે. હરિભાઈ, આપનું પણ સ્વાગત છે. અને દિલ્હીથી વરિષ્ઠ પત્રકાર અશોક વાનखेड़े જોડાયા છે. अशोक जी, आपનું પણ સ્વાગत છે. धन्यवाद। अशोक जी, सीधा सवाल इस्तीफा को लेके है कि नए जो पंजाब में जो सिद्धू जी ने राजीनामा दे दिया, इस्तीफा दे दिया, उसके पीछे की वजह क्या मानी जाए? नए सीएम चरणजीत सन्नी ने सन्नी से उनकी नहीं बन रही थी, या तो फिर कैबिनेट में जो पोर्टफोलियो बांटा गया उनसे वो खुश नहीं थे, या कोई और वजह, अफसरों की ट्रांसफर को लेके भी वो खुश नहीं थे? क्या वजह आ सकती है सिद्धू के इस्तीफा की? देखिए, पंजाब में ये जो तकलीफ थी ये आज से शुरू नहीं थी। काफी महीनों से, कई 1-2 साल से पंजाब में तकलीफ थी कि कैप्टन से लोग नाराज थे, विधायक को मिलना नहीं, मंत्रियों के काम नहीं होते थे, अधिकारी इतने सरफिरे हो गए थे कि वो मंत्रियों को भी कुछ नहीं मानते थे, क्योंकि कैप्टन के आसपास के 3-4 लोग ही सरकार चलाते थे। कैप्टन एक राजा है, वो राजा के हिसाब से सरकार चला रहे थे। इसके बाद लगातार कंप्लेंट्स होती आ रही है कि कोई अध्यक्ष जिसको बनाए वो अध्यक्ष ऐसा नहीं बन पा रहा था जो कैप्टन के खिलाफ सीधा विद्रोह करे। इन्होंने जब नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया तो नवजोत सिंह सिद्धू ने खुल के फ्रंट खोला, जो कहीं ना कहीं ये हाईकमान के लिए भी सुविधाजनक था। जब 78 लोग सिद्धू के साथ आ गए तब जाके कैप्टन का इस्तीफा हुआ। कैप्टन ने भी समझ लिया कि अब यहाँ रहने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोग कोई साथ नहीं है। जब सिद्धू के वजह से कैप्टन का बलि गया या कैप्टन को उतारना पड़ा, ये बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि कैप्टन के और गांधी परिवार के बहुत नजदीकी संबंध थे। ऐसे में जब कैप्टन को उतारा गया तो एक मैसेज गया डाउन द लाइन सारे सीनियर लोगों को कि अब आला कमान जो है नो नॉनसेंस के मोड में आया है। अब आला कमान किसी को सुनने को तैयार नहीं है, यदि आप परफॉर्म नहीं करते तो आपको जाना होगा। उसके बाद ये जो कैप्टन का जाना और नए मुख्यमंत्री का आना, इसके बीच में शायद सिद्धू साहब को ये लगा कि वो सर्वे सर्वा हो गए हैं, वो आला कमान हो गए हैं, वो सबसे बड़े कांग्रेस के नेता हो गए हैं, जो चाहे वो करवा सकते हैं। उसी स्टाइल पे उन्होंने मंत्रिमंडल में कुछ नाम दिए जो ड्रॉप हुए। उसके बाद पोर्टफोलियो में जो लगातार बदलाव चाहते थे वो हाईकमान ने होने नहीं दिया, और मुख्यमंत्री ने 2 टूक बात कही अध्यक्ष जी से कि आप मेरे अध्यक्ष हैं, लेकिन जो भी आदेश है मुझे हाईकमान से लेना होता है, तो आप दिल्ली जाके बात करिए। इससे आहत होके सिद्धू ने राजीनामा दिया। अच्छा, सिद्धू का जो इस्तीफा है ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके पहले जब क्रिकेट टीम में थे तो अजहरुद्दीन से चिक हो गई, उन्होंने क्रिकेट टीम से इस्तीफा दिया। बीजेपी में मोदी साहब से कोई बात पे चिक हो गई, वहां से इस्तीफा दे दिया। मंत्रिमंडल में थे राजा साहब के, उनको तो पाकिस्तान से तो प्यार है उनको, बाजवा मेरे भाई है और इमरान खान मेरे दोस्त है, ये बोल रहे हैं। बिल्कुल,
ये क्योंकि ये एक आपको एक मस्करा आदमी जो सीरियस पॉलिटिशियन नहीं हो सकता है कि कई बार आपके पीछे लोग इसलिए हो गए कि आपको कैप्टन के खिलाफ कोई फ्रंट खोलने वाला मिल गया। इसका मायना ये नहीं कि सिद्धू इतने बड़े नेता हो गए पंजाब के कि वो अपने भरोसे जीत दिलवा दे। आज भी वहां पे कांग्रेस का एक वोट बैंक है। आज दलित का मुख्यमंत्री बनाया, सबसे ज्यादा दलित वोट पंजाब में है। वो एक बहुत बड़ा एक तुरुप का पत्ता कांग्रेस ने फेंका है, मास्टर स्ट्रोक। उसकी वजह से सब पार्टियां बैकफुट पे आ गई। जब बैकफुट पे आ गई और कहीं ना कहीं दलित का ये नकली प्रेम जब बताने लगे कांग्रेस का, उसी बीच में जिग्नेश आ जाते हैं। और जिग्नेश एक ऐसे नेता है, गुजरात से भले ही आते होंगे लेकिन पैन इंडिया उनका प्रेजेंस है। वो केरल में भी भाषण दे के आए, वो महाराष्ट्र में भी भाषण दे के आए, वो बंगाल में भी भाषण दे के आए। तो जिग्नेश का चेहरा एक दलित फेस करके पूरे नेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं था। अब कांग्रेस उसको कैसा कैच करती है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर है यहाँ पे। कांग्रेस ने कई बार कांग्रेस जीती हुई बाजी हारने के लिए बहुत फेमस है। आज कांग्रेस ने जिग्नेश को ले लिया, कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को ले लिया, लेकिन कांग्रेस इसका कितना यूज कर पाएंगे पता पड़ा। इनको ले तो लिया, लेकिन जहां उपयोग करना है वहां उपयोग होने नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस में आज भी एक कोटरी काम करती है। वो कोटरी कहीं ना कहीं हाईकमान के कान भरती रहती है। इससे जब तक कांग्रेस निजात नहीं पाएगी तब तक मात्र लोग आने से एक परसेप्शन बन गया कि कांग्रेस अनटचेबल नहीं है। कांग्रेस से लोग जा रहे हैं तो सत्ता भोगने के लिए जा रहे हैं, सत्ता का मक्खन खाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में जो लोग आ रहे हैं वो स्ट्रगल करने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने जो कहा कि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, कांग्रेस को बचाना होगा, संविधान को बचाना हो, तो वो बार बार कांग्रेस अपने आप को एक राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। ये अभी की परिभाषा है। आगे जाके क्या होगा, कल क्या होगा, क्योंकि मैंने बार बार कहता हूं कांग्रेस को जीती हुई बाजी हारने में कांग्रेस पीएचडी कर चुकी है। जी हरिभाई, सवाल ये है कि कन्हैया कुमार ने जिग्नेश મેવાણીને જે જોડાયા છે હવે કોંગ્રેસમાં, કેટલો ફરક કોંગ્રેસમાં પડી શકે છે? કારણ કે આંતરિક જૂથવાદ ક્યાંક જોવા મળી રહ્યો છે, ક્યાંક પંજાબ રાજસ્થાનમાં પણ ક્યાંક હલચલ જોવા મળી રહી છે। બીજી તરફ કોંગ્રેસ એક પ્રયાસ કરી રહ્યું છે કે યુવા નેતૃત્વને હવે ફેસ બનાવવા માંગે છે કોંગ્રેસ। આવનારા દિવસોમાં કેટલો ફરક પડી શકે છે કોંગ્રેસને આને લઈને? મને એવું લાગે છે કે આ બે મિત્રોને જે લીધા કોંગ્રેસે, એ મિસાઇલ કઈ બાજુ ફૂટશે ખબર નથી। આ છે ને ભાઈ આપણા સિદ્ધુ જેવી જ મિસાઇલો છે કે એ ગમે ત્યારે ગમે તે દિશામાં ફૂટી શકે। એ લોકો આજે છે ને અહીંયા આવ્યા છે, બંને જણા લેફ્ટ લીનિંગ છે, લેફ્ટિસ્ટ છે આમ તો બેઝિકલી। એટલે ગુજરાતમાં તો એ ચાલે એમ નથી। ગુજરાતની અંદર એમનું છે ને બહુ વજૂદ નથી। વડગામની અંદર ભાઈ જીત્યો જે મેવાણી, એ છે ને કોંગ્રેસની બેઠક હતી, મુસ્લિમ બહુલ વોટર્સ છે એટલા માટે એ જીત્યો। અને કન્હૈયા કુમાર બંને ફાયરી છે। મને લાગે છે વાનખેડેજીએ જે વાત કરી કે બંને જણા છે ને બહુ આક્રમક ભાષણો કરે છે, પણ રાજકારણમાં માત્ર ભાષણોથી જ કામ ચાલતું નથી। એની સાથે સાથે પાછળ પડદા પાછળની વ્યૂહરચનાઓ બહુ મહત્વની છે। અને મને લાગે છે ત્યાં સુધી કોંગ્રેસની અંદર છે ને જે પ્રકારની મિસાઇલો ગોઠવી રહ્યા છે, સ્ફોટકો ગોઠવી રહ્યા છે ભારતીય જનતા પાર્ટી વાળા અને આપ વાળા, પંજાબમાં આપણે જોઈએ છીએ હજુ તો વિભાગોનું વિતરણ થાય છે। દલિત મુખ્યમંત્રી કોંગ્રેસ બનાવે એટલે બહુ મોટી વાત છે। 32% દલિત વોટ છે। અને બીએસપી અને અકાલી એ છે ને બે જણા એકમેકની આંખો એમની લડે, એ લોકો ભેગા થાય છે દલિત વોટ બેંકને રીઝવવા માટે। ભારતીય જનતા પાર્ટી વાળા પણ અસંતુષ્ટ અકાલીઓ અને અસંતુષ્ટ કોંગ્રેસીઓને લેવા માટે તલપાપડ છે। આપ વાળા પણ જેને દલિત તરફી થઈ રહ્યા છે। એવા સંજોગોની અંદર કોંગ્રેસના પોતાના જે ચાન્સીસ હતા એ ચાન્સીસમાં સુરંગો મુકાઈ રહી છે એવું મને લાગે છે। જી પણ હરીફભાઈ, લાગે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે પ્રમાણે એના જે મિસાઇલ ગોઠવી રહી છે ને ક્યાંક કેપ્ટન અમરિંદર સિંહની જે આ મુલાકાત છે એને લઈને આવનારા દિવસોમાં પંજાબમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનું વર્ચસ્વ વધે, વજૂદ વધે એવું ક્યાંય દેખાઈ રહ્યું છે કે ના, પરિસ્થિતિમાં કોઈ ફરક નહીં પડે? નહીં, મને એવું લાગે છે। એટલે હું પહેલાથી કહું છું કે અમરિંદર છે ને એ કઈ કોંગ્રેસને વરેલા માણસ તો છે નહીં। એને 1984 થી માંડીને 1998 સુધી એને અકાલી દળ અને પોતાની અકાલી પંથિક પાર્ટી ને એ બધે કરી અને ચૂંટણી લડ્યા ત્યારે 600 વોટ મળ્યા હતા એમને એમની રીતે। કોંગ્રેસને એને મજબૂત બનાવી, ગઈ વખતે કોંગ્રેસને એને જીતાડી
રાહુલ બાબાને બોલાવ્યા વિના પણ કોંગ્રેસને જીતાડી, એમાં કોઈ મીનમેક નથી. પણ એ હાઈકમાન્ડને ગાંઠે નહીં એવા માણસો હાઈકમાન્ડ ચલાવી ન લે. અને સિદ્ધુ પણ જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં હતો ત્યારે રાષ્ટ્રવાદી હતો, ભારતીય જનતા પાર્ટીનો મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ હતો ત્યારે રાષ્ટ્રવાદી હતો. અત્યારે છે ને એન્ટી નેશનલ થઈ ગયો. એટલે મને લાગે છે અમરિંદર છે ને ભાજપની ભાષા બોલે છે. પણ હું માનું છું કે જે બેને રાજીનામું આપ્યું સિદ્ધુની તરફેણમાં, એ ભાઈએ છે ને એ કેપ્ટન અમરિંદર, એટલે હું જેને કહું છું કે મોહમ્મદ મુસ્તફા, એટલે આમ તો સિદ્ધુના જે એડવાઇઝર રહ્યા, એને કહ્યું કે પેલી અરુસા આલમ આની છે ને ગર્લફ્રેન્ડ છે જે અમરિંદર સિંહની, જે પાકિસ્તાની છે, એના ઘરમાં એ રહે છે. પાકિસ્તાની જર્નલિસ્ટ અને પાછી ડિફેન્સ જર્નલિસ્ટ છે. અને યાયા ખાન માટે સુરા અને સુંદરીની વ્યવસ્થા કરનાર જનરલ રાણીની દીકરી છે. એટલે એ અમરિંદર સિંહને લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટી છે ને રાષ્ટ્રવાદ કેવો લાવશે એ ખબર નથી. એટલે ગૂંચવાડાઓ ઉભા થયા છે. કાલે શું થશે ખબર નથી. અમરિંદરે કહ્યું કે હું કોઈને મળવાનો નથી, દિલ્હીમાં કોઈ રાજનેતાઓને મળવાનો નથી. પણ અમરિંદર નુકસાન તો કોંગ્રેસને કરી શકે છે. આ છે ને બહુ સ્પષ્ટ છે. સિદ્ધુએ પણ નુકસાન કર્યું છે. ઇમેચ્યોર છે, ડાયલોગ બાજીથી છે ને વોટ ન જીતે. બહુ સાચી વાત. મનસ્વીજીની એ વાત સાથે હું સંમત છું. જી જી मनस्वी जी, हरिभाई आऊँ आपकी पास। मनस्वी जी, जे प्रमाणे सिद्धू ने मतलब जो इस्तीफा दे दिया है, पहले भाजपा को भी एक हमला बोलने का मौका मिल गया कि भाजपा ने बोला है कि ये तो कॉमेडी सर्कस में ही सही थे, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी में थे तब राष्ट्रवादी थे, हरि जी ने बोला वैसा, बाद में कांग्रेस में आए तो भाजपा में थे तब सोनिया और राहुल को टारगेट बनाते थे, कांग्रेस में आए तब मोदी और शाह को टारगेट बनाते थे। अब इस्तीफा दे दिया, न जाने किस पार्टी में ज्वाइन हो गए और सिद्धू का क्या होगा। लगता है कि बैकसीट में कोई और है सिद्धू के, मे बी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। नहीं, हरि जी ने जो बोला बिल्कुल सही बोला है, और अशोक जी ने भी जो बात की बिल्कुल एकदम सटीक बात की है कि ये आजकल का ट्रेंड है। 2014 के बाद हरि भाई और अशोक जी में से इस चीज से एग्री करेंगे कि जब से आप बीजेपी में ज्वाइन करते हैं तो आप नेशनलिस्ट हो जाते हैं, आप बीजेपी को छोड़ते हैं तो एंटी नेशनलिस्ट हो जाते हो। मुकुल रॉय ने जब टीएमसी छोड़ी थी तो एंटी नेशनल से वो नेशनलिस्ट हो गया, और आज वो वापस से एंटी नेशनल हो चुका है। इसी दौरान पे महाराष्ट्र की जब गठबंधन की सरकार कुछ दिनों के लिए हुई थी तो अजीत पवार नेशनलिस्ट हो गए थे, और अभी वो एंटी नेशनल है, और सिद्धू भी उसी प्रकार से एट प्रेजेंट एंटी नेशनल है। कल को हमको पता नहीं कि वो नेशनलिज्म में वापस आ जाएंगे। पर ये जो चीज है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमको देखने को मिलती है कि नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट जो हो गया ना, आजकल पॉलिटिकल पार्टीज बांट रही। और आज शहीद भगत सिंह जी की जयंती है, और भगत सिंह जी किसी पार्टी के नहीं थे, वो खुद अपने आप को अलग अलग आइडियोलॉजीज के साथ अपने आप को परिचित करते थे। पर आज उसकी बात को छोड़ते हुए, उनकी सैक्रिफाइस को, उनकी शहीदी को छोड़ते हुए हम देखो आज पंजाब की बात कर रहे हैं, और पंजाब में जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, कोई भी पार्टी आजाद देश के बाद किसी भी वर्ग की नहीं है, ये हमको समझ जाना चाहिए। ना वो हिंदुओं की है, ना मुस्लिमों की है, ना दलितों की है, ना ही किसी वर्ग की है। उनका सिर्फ एक ही वर्ग है, वो है वोट बैंक। और वोट बैंक की राजनीति के लिए उनको क्या सही लगता है, क्या जोड़ तोड़ करना है, किस तरीके से करना है, उसके ऊपर ही वो चलती है। आज अगर दलित वोट ज्यादा है तो आप दलित को किस तरीके से लुभाएंगे, आज अगर पाटीदार वोट ज्यादा है तो पाटीदारों को किस तरीके से लुभाएंगे। पर मेरा सवाल आजादी के 75 इयर्स के बाद ये है हमारे पास, क्या हम इतने बेवकूफ हैं, क्या एज अ वोटर हम इतने बेवकूफ है कि हमारे को आप लॉलीपॉप दोगे तो हम आपको वोट करेंगे। आज जो नया भारत की जब हम बात करते हैं, नया भारत का दिमाग भी तो नया होगा। नया भारत इन सब चीजों पे नहीं बिकने वाला, आपकी ये लॉलीपॉप या सेंटिमेंटल या इमोशनल चेंजेस के कारण नहीं। लोग लॉलीपॉप खा लेते हैं, नया भारत है, नई सोच नहीं है लोगों में, तो ये बार बार लॉलीपॉप दे रहे हैं पॉलिटिशियन अपने को। नहीं, लोग लॉलीपॉप खा लेते नहीं। ये देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ट्रेडिशनल है, वो ये नहीं समझ रही आजकल का नया भारत में लोगों के सवाल उठेंगे। आज राइट टू इंफॉर्मेशन सिर्फ एक एक्ट नहीं है, ये हमारा हक है, हमारे पास सवाल पूछने का हक है। और इस सवाल पूछते हुए हम ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि आप मिड टर्म में चीफ मिनिस्टर चेंज कर देते हो, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग से आप रिमोट कंट्रोल से, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आप चला रहे हो। एक फेडरल स्ट्रक्चर में जहां पे स्टेट्स के पास पावर होती है, मैनिफेस्टो के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन लड़ती है, उन मुद्दों पे उन लीडरशिप को लोग वोट देते हैं। आपने विजय भाई को बोला कि विजय भाई हमारे चीफ मिनिस्टर होने वाले, आपने आपकी
समीकरण बिठाया और आपको लगा बस इतना ही उनको देना है, आपने चेंज कर दिया। सिमिलरली आपने पंजाब में ऐसा किया, आपको लगा कि दलित वोटों को आपको लेके जाना है, लुभाना है, तो आपने कैप्टन साहब को चेंज कर दिया। पर 2017 का इलेक्शन, आज हरिभाई मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, एनालिस्ट है, अशोक भाई हैं, वरिष्ठ है, मेरे सीनियर है, ये दोनों जानते हैं 2017 का इलेक्शन इन दोनों राज्यों की मैं बात करता हूं, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के चेहरे पे लड़ा गया था। ये वोटर्स के साथ धोखा हो रहा है। क्या हमको आजादी इसलिए मिली थी इस लोकतंत्र में कि हम वोटर्स के साथ धोखा देंगे? वोटर्स अब इन सब चीजों से ऊपर हो गए। वोटर्स की डिमांड क्या है? वोटर्स चाहते हैं हमको सही तरीके से बेरोजगारी से आजादी मिले, वोटर्स चाहते हैं हमको महंगाई से आजादी मिले, वोटर्स चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल का जिस तरीके से रेट बढ़ता जा रहा है उससे आजादी मिले। क्या हम उससे आजादी दिला पा रहे हैं? हम लोग नई नई लॉलीपॉप लेके आते हैं, अब लॉलीपॉप भी खत्म हो गई है। 75 इयर्स की आजादी के बाद हमारे देश के पास लॉलीपॉप भी खत्म होगी। अब मुद्दों के आधार पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, मुद्दों के आधार पे हम लोग सोचेंगे कि देश को किस तरीके से आगे लेके जाना है। मेरा सवाल एक ही है, पंजाब की ग्रोथ, क्या उड़ता पंजाब अब ठहर गया है? क्या उड़ता पंजाब अब दौड़ने लग गया है? क्या इसके ऊपर बात होगी? उड़ता पंजाब तो छोड़ दो, अभी गुजरात उड़ता हुआ हो चुका है। क्या गुजरात को हम उस गति से दौड़ा सकते हैं जिस गति से गांधी जी ने सोचा था? क्या उस गति से हम शहीद भगत सिंह की जो शहादत है उस गति से हम दौड़ा सकते हैं जो सोच थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की? नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेंट्रिक अप्रोच में पहुंच चुके हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया में हर एक आदमी का अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल चेंज हो चुका है। अभी नेशनलिस्ट अंडरस्टैंडिंग किसी का नहीं है, अभी पार्टी ओरिएंटेड अंडरस्टैंडिंग हो चुका है। आज देश के बारे में कोई नहीं सोचता। आज आप देखिए, तिरंगा से ऊपर पार्टियों का झंडा हो चुका है। यही एक कारण है कि देश पीछे हो चुका है और पार्टियां अपने आप को आगे करती जा रही हैं। और यही एक कारण है, पॉलिटिक्स जो हमारा है, पहले देश की बात होती थी, आजकल व्यक्तियों की बात हो गई है। पहले हम राम के भक्त थे, आजकल हम व्यक्ति के भक्त हो चुके हैं। कोई गांधी का भक्त होगा, कोई मोदी का भक्त होगा, पर देशभक्त, हमको सच्चे देशभक्त मिलने बहुत मुश्किल हो चुके हैं। जी अशोक जी, जिस तरह मनस्वी जी ने कहा कि जो हमारे वोटर्स है उनके साथ मतलब दगा हो रहा है, उन्होंने ये भी बताया। सवाल यह है कि जिस तरह कन्हैया कुमार ने बोला कि देश को बचाना है तो कांग्रेस को बचाना पड़ेगा, सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। अब सवाल यह है कि वोटर्स को ये लोग लॉलीपॉप देते हैं, जाति की लॉलीपॉप देते हैं। जैसे मनस्वी जी ने कहा कि कहीं दलित मुख्यमंत्री बना दिया, कहीं पाटीदार मुख्यमंत्री बना दिया, कहीं और बना दिया। तो क्या यही राजनीति आने वाले दिनों में भी रहेगी? 2022-24 में यही राजनीति रहेगी और यही सोच रहेगी? वोटर्स भी यही सोच से वोटिंग करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल मानव जी के साथ हूं। ये राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि उन्होंने किया वो सही किया। एक सवाल मेरे तरफ से राजनीतिक पार्टियों को, क्या मतदाता मूर्ख है? गुजरात के हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, वो पूरे देश की राजनीति करते हैं, पूरे देश का भविष्य संवारने की बात करते हैं। उन्हें 5 से 6 साल लगे ये समझने में कि जो मुख्यमंत्री 7 साल से गुजरात में बैठा है वो इस लायक नहीं है और एक पाटीदार को बनाना पड़ेगा। वो जो पाटीदार जो 5 साल भी जिसने विधायक के पूरे नहीं किए, उसको आपने मुख्यमंत्री बनाया। उनको इतने सालों बाद पता पड़ा कि कर्नाटक में अब येदियुरप्पा किसी काम के नहीं है। 4.5 साल बाद कांग्रेस को पता पड़ा कि एक दलित को मुख्यमंत्री जरूरी है, राजा साहब तो ऐसे ही है। ये समझने में यदि इस राजनीतिक दलों को और नेताओं को सालों लगते होंगे तो फिर देश की जनता और समस्या को समझने में कितना टाइम लगेगा? लोगों को समझना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी के पास एक वॉशिंग मशीन है, अपने ब्रांड का वॉशिंग पाउडर है। उधर का नेता आया, वॉशिंग मशीन से निकाला, क्लीन किया, बोला ये अब अच्छा हो गया है। जो भी आता है वो बैगेज लेके आता है तो वो बैगेज साफ करवाता है। और एक छोटी सी कहानी में 1 मिनट ज्यादा लूंगा आपसे आज, जो मानव भाई ने कहा कि लोग भी, वोटर भी चेंज हो गए हैं। एक कहानी है बंदर की। एक टोपी बेचने वाला दर्जी टोपियां लेके मार्केट जा रहा था। रास्ते में उसको भूख लगी, दोपहर का टाइम था, खाना खा लिया टिफिन से और पेड़ के नीचे ठंडी हवा थी, सो गया। जब उठा तो देखा सारे टोपियां गायब थी, सारे बंदर पेड़ के ऊपर वो टोपियां लेके उछाल रहे थे। उसने बहुत प्रयास किया, बंदरों को पत्थर मारे, वो टोपी नीचे नहीं गिरा रहा था। इतने में एक दूसरा वहां से रास्ते में जा रहा था सज्जन, उसने क्या होगा? नहीं, दर्जी को पूछा, कोई करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे सर पे टोपी है? बोले हाँ। बोले वो टोपी ऐसा उठो और नीचे पटको, ये बंदर तुम्हें कॉपी करेंगे, नीचे टोपी पटकेंगे। उसने वैसा ही किया, सब बंदरों ने टोपी नीचे गिरा दी। पार्ट सीन। उसके बाद 75 साल होते हैं। 75 साल के बाद उस दर्जी का लड़का उसी रूट से जाता है, वही सोता है, वही उसके साथ होता है कि बंदर टोपियां लेके ऊपर गए। जब बंदरों को देखता है तो लड़का हंसता है, क्योंकि उसके पिताजी ने उसको कहानी सुनाई।
उसने टोपी उठाई और नीचे पटक दी, लेकिन ऊपर के एक भी बंदर ने टोपी नहीं उछाली। उसने बंदर की तरफ देखा तो बंदरों ने कहा कि पिताजी तुम्हारे नहीं हमारे भी होते हैं। यस यस यस। उन्होंने भी हमको सुनाया है। तो आज सोशल मीडिया है, आज आपके चैनल जैसा चैनल है जिसको सारे लोग देखते हैं, यहां से लोगों को समझ में आता है ये क्या देश का भविष्य तय करेंगे। जिनको गुजरात का मुख्यमंत्री इतने दिन से काम नहीं कर रहा है, ये समझने में आपको 7 साल लग गए। रूपानी फेली हो रही है, समझने में इतने साल लग गए। आप क्या तय करोगे हमारा भविष्य? ये भविष्य कोई किसी के हाथ में देगा, और ये सभी राजनीतिक दलों को सोच लेना चाहिए, क्योंकि अब लोग समझदार हो गए हैं, लोग सवाल उठाते हैं। हरी भाई घना बधा सवालों, ये वाजिबी है। सवाल उठाने के वजह से ही भगत सिंह शहीद हुए थे। भगत सिंह सवाल नहीं उठाते तो भगत सिंह शहीद नहीं हुए। समय 75 साल बदला है, आज भी सवाल उठाने वालों को जेल होती है, फांसी नहीं। फर्क इतना है। હરીભાઈ તમે શું માનો છો, કયા પ્રકારની આ રાજનીતિ ચાલી રહી છે? કારણ કે 2022 ને 24 ની જે તૈયારીઓ છે, પરંતુ આખરે મુદ્દા આધારિત નથી. શું મતદારોને મૂર્ખ સમજે છે? અશોકજી કહે છે એમ એમની પાસે વોશિંગ મશીન છે, જે નેતા વોશિંગ મશીનમાં જાય છે, ક્લીન થઈને બહાર આવે છે. સવાલ એ છે કે આવનારા દિવસોમાં શું આ જ રાજનીતિ રહેશે? કારણ કે હિન્દુ મુસ્લિમ જાતિ જ્ઞાતિ આધારિત આપણે વોટિંગ પણ એ જ પ્રમાણે કરવાનું. શું આ પેટર્ન નહીં બદલાય? શું પ્રજા નહીં સમજે? શું સમજવું શું આનું? ના, એટલે હું બહુ જ નિરાશાવાદી નથી, પણ સાથે સાથે એટલું પણ કહી શકું કે આ લોકો સક્ષમ રીતે લોકોને મૂર્ખ બનાવી રહ્યા છે. અચ્છા, એ એટલી જ હકીકત છે, એટલી જ હકીકત છે. પણ અત્યારે છે ને આપણી સામે એક બહુ સરસ એક ઇવેન્ટ બની. જો બાઇડન અને કમલાદેવી હેરિસને માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મળે છે અને અમેરિકાના પેપરોમાં એક શબ્દ નથી લખાતો, એક શબ્દ. મેં આ પાછું ચેક કર્યું છે. નોંધ નથી લેવાતી. ફોટોશોપ જે મોદીનો ફોટો મૂકવામાં આવ્યો ન્યુયોર્ક ટાઈમ્સના પેલા ઉપર, એ છે ને બીજેપી નો કાર્યકર્તા હતો અથવા તો હિન્દુવાદી કાર્યકર્તા હતો, મોદીનો ફેન હતો. એ પણ છે ને તમે જોઈ શકો છો. હવે જુઓ કે જે મોદી હ્યુસ્ટન જાય છે, અગલી બાર ટ્રમ્પ સરકાર કરે છે, એ મોદીનું સ્વાગત છે ને અમેરિકાની અંદર ઇન્ડિયન્સ પણ નથી કરતા. એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એટલે લોકો સમજે છે તમારો છે ને તમારો જે ઓરા છે, તમારો જે કરિશ્મા છે એ ઓસરી રહ્યો છે, અને એટલા માટે એરપોર્ટ ઉપર તમારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઢોલ ત્રાંસાવાળા લોકોને મંગાવવા પડે. એટલે આ છે ને પ્રજાને ઢંઢોળવાની જરૂર છે. પ્રજાને છે ને કહેવાની જરૂર છે કે પ્રજા જાગે. વાનખેડેજીએ બહુ સરસ વાત કરી, પણ વાનખેડેજી એ લોકોને ખબર છે કે રૂપાણી નિષ્ફળ છે. એ છે ને એનો દોષનો ટોપલો છે ને એમણે લોકોને માથે સરકાવીને બીજાને નવાને મૂકી દીધો. અફસોસ એ છે કે 7 વર્ષે ખબર પડી. એટલે છે ને એ લોકો છે ને ભરમાઈ જાય છે. દર વખતે આ ફોર્મ્યુલા આવે છે. લોકોએ સમજવાનું છે. आखिर में मनस्वी जी आपके पास आऊंगा कि पंजाब में जो घमासान हुआ, बीजेपी को भी मौका मिल गया. उन्होंने कहा कि सिद्धू के पीछे कौन है या सिद्धू किसके पीछे भाग रहे. मतलब सवाल यह है कि सिद्धू के पीछे कोई है कि कौन, या तो सिद्धू किसके पीछे जा रहे हैं? क्या कहेंगे? सिद्धू कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, किसी दल में जुड़ेंगे या क्या? देखिए, हमारे देश में ना 1960 से शुरू हुआ आया राम गया राम. उससे पहले ना हमारे देश में आइडियोलॉजी जो होती थी बहुत ही ज्यादा सटीक होती थी. या तो मैं राइट हूं, या तो लेफ्टिस्ट हूं, या सेंट्रिस्ट हूं. आइडियोलॉजी के हिसाब से चलते थे और उसी कारण इलेक्शन लड़े जाते थे. या तो आप राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, और देश की गति उस हिसाब से डिसाइड होती थी. आजकल जो है कोई आइडियोलॉजी का जो डिफरेंस होता है, अब लोगों को यही नहीं पता लेफ्ट आइडियोलॉजी का मतलब क्या और राइट आइडियोलॉजी का मतलब क्या है. उसके पीछे पूरे रीजंस है, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में किसी को नहीं पता. और ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है. आजकल सिर्फ एक ही चीज समझ आती है कि मैं किस तरीके से सत्ता में आता हूं, और सत्ता में आने के लिए मुझे बीजेपी में जंप करना है, कांग्रेस में जंप करना है, कोई नई पार्टी बनानी है, नई पार्टी में आना है, वो इंपॉर्टेंट है. आप कौन सी आइडियोलॉजी से आने वाले हो, आप कौन सी सच्चाई जनता को देने वाले हो, वो सब चीजें पीछे रह चुकी है. तो आज का जो मुद्दा है, क्या सिद्धू का करियर इसके बाद आगे बढ़ पाएगा? जो हिस्टोरिकल डेटा है, हरी भाई और अशोक भाई इससे मेरे एग्री करेंगे, जो हिस्टोरिकल डेटा है, आया राम गया राम के टाइप के जो लोग होते हैं, उनका राजनीतिक करियर जो होता है ना, लंबा नहीं चलता. उनका राजनीतिक करियर जो होता है कुछ समय के लिए चलता है. शायद उनको कुछ उपलब्धियां भी मिल जाए, पोजीशंस भी मिल जाए, पर उनका करिश्मा या उनकी जो इनिंग है बहुत ही शॉर्ट टर्म होती है.
और जो लोग एक ही पार्टी से जुड़े रहते हैं, जो लोग एक ही दल से जुड़े रहते हैं, उनकी इनिंग्स लंबी चलती है। शायद समय उनका लेट आएगा, पोजीशन उनको लेट मिलेगी, और उसका बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे गुजरात में हमारे पास है। जो लोग आया राम गया राम थे, कांग्रेस से बीजेपी में आए, आज नई मिनिस्ट्री में उनका आप हाल देख लीजिए। आपको कुछ शॉर्ट टर्म के लिए मिनिस्टर बना सकते हैं, टिकट दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जो पार्टी कैडर बेस होती है, जो पार्टी लीडर के साथ आगे बढ़ती है, उन सब के कार्यकर्ताओं को भी एक कड़वा घूंट पीना पड़ता है, जिनको आप हमेशा से गालियां देते रहे हो। जिस आइडियोलॉजी को, पार्टी को आप जीवन भर गाली देते रहते हो, उनके नेता को आपको अपनाना पड़ता है, मिनिस्टर बनाना पड़ता है। મનસ્વીજી, હવે પ્રજાએ પણ સમજવું પડશે અને ઓળખવું પડશે ને જે પ્રમાણે આપણે કહ્યું કે એથિક્સ ના આઈડિયોલોજી જેવું કંઈ છે જ નહીં, કારણ કે લોકો જે કોઈ સત્તા મેળવવા માટે દલ બદલી રહ્યા છે, પાર્ટી બદલી રહ્યા છે, બેનર બદલી રહ્યા છે, હજારો લોકોનો વિશ્વાસ પણ ખોઈ રહ્યા છે, પણ સવાલ એ પણ છે કે આ વોટ બેંકની રાજનીતિ છે, વોટર્સ જોડે દગો થઈ રહ્યો છે, અને જેમ આ મહાનુભાવોએ કહ્યું તેમ કે ક્યાંક પ્રજાને ઢંઢોળવાની જરૂર છે, પ્રજા જાગે, નહીતર આની આ જ રાજનીતિ રહેશે, લોલીપોપ આપતી રહેશે અને આપણે ચૂસતા રહીશું. લોકમંચ કાર્યક્રમમાં હતી આજની ચર્ચા, અને ચર્ચામાં ભાગ લેવા બદલ મનસ્વી થાપડ, ડોક્ટર હરિ દેસાઈ, અશોક વાનખેડે ત્રણેય ઉપસ્થિત રહ્યા. થેન્ક યુ. ધન્યવાદ. તો દર્શક મિત્રો, લોકમંચ કાર્યક્રમમાં હતી આજની ચર્ચા. ફરી મળીશું એક નવી ચર્ચા સાથે, નવા મુદ્દા સાથે. જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.